Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So today we will discuss a fifth part of chapter of appeal. We have discussed section 372 to section 386 in the previous 4 parts. You can watch those lectures from my YouTube channel. You can select the playlist of Criminal Procedure Code where you will get all the lectures of CrPC along with the chapter of appeal. So let us proceed towards our topic. So section 387 of CrPC deals with judgment of subordinate appellate court. Judgment of subordinate appellate court, section 387. So the rules contained in chapter 27 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply so far as may be practicable to the judgment in appeal of a court of session or chief judicial magistrate. So whenever the court of appeal is entertained by the court of session and chief judicial magistrate, then they can apply the same mode as they are applying in case of normal judgment as per chapter of section 27. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई केस चला रहा है क्रिमिनल कोर्ट, तो जो जजमेंट से रिलेटेड चैप्टर 27 में जो प्रोविजन है वही प्रोविजन सेम अगर सेशन कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर अपील इंटरटेन कर रहे हैं तो वही प्रोविजन लागू होंगे अपील में भी, जो लोअर कोर्ट को ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में चैप्टर 27 में बताए वाले सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल इन केस ऑफ अपील इंटरटेन्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो दैट इज द फर्स्ट वन. देन प्रोवाइडेड दैट अनलेस द appellate court otherwise directs, the accused shall not be brought up or required to attend to hear the judgment delivered. So normally we knows very well that whenever the criminal court pass the judgment, then court shall pass the judgment in the presence of accused person. तो अक्यूज प्रेजेंट रहने के बाद ही कोर्ट जजमेंट डिलीवर कर सकता है, अक्यूज के एब्सेंसी में कोर्ट जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकता है. बट सपोज इफ द सेशन कोर्ट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज एंटरटेनिंग एनी अपील, देन अनलेस द अपेलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक अपेलेट कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता अक्यूज्ड को, द अक्यूज शैल नॉट बी ब्रॉट अप. अगर अपेलेट कोर्ट बोल रहा है कि अक्यूज्ड को जजमेंट सुनने के लिए कोर्ट में लेकर आना चाहिए, तभी उसको लेकर आया जाएगा. जब तक अपेलेट कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक अक्यूज्ड को लाने की जरूरत नहीं है. और रिक्वायर्ड टू अटेंड, ना तो उसे अटेंड करने की जरूरत है टू हियर द जजमेंट डिलीवर्ड. मतलब अपेलेट कोर्ट अगर जजमेंट डिलीवर कर रहा है उसको सुनने के लिए अगर अपेलेट कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड को लेकर आओ तो लाएंगे, अगर नहीं कहता है तो लाने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 387 ऑफ CrPC. नाउ section 388. So order of High Court on appeal to be certified to lower court. Section 388 deals with order of High Court on appeal to be certified to lower courts. So whenever a case is decided on appeal by the High Court, it shall certify its judgment or order to the court by which the finding, sentence or order appealed against was recorded or passed. Suppose if against the order of session court, if appeal is preferred before the High Court, so whenever the High Court decides the appeal, after passing a judgment in appeal, High Court will certify that particular judgment and send it to the session court. तो क्या होगा कि जब कभी भी फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अगर हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट अगर अपील को डिस्पोज करता है, जजमेंट पास करता है अपील में, तो वो जजमेंट को हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा और वो सर्टिफाई कॉपी ऑफ जजमेंट सेंड करेगा किसको? सेशन कोर्ट को. If such court is that of a judicial magistrate other than the chief judicial magistrate, the High Court's judgment or order shall be sent through the chief judicial magistrate. If such court is that of a judicial magistrate, अगर वो कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का है other than chief judicial magistrate, मतलब in such a way we can say that
Other than chief judicial magistrate means judicial magistrate first class or second class, whatever it may be. If the court is like that, suppose if against the order of judicial magistrate first class, if the appeal is preferred before the session court and against that before the high court, अगर other than CJM अगर कोई कोर्ट है तो उस सिचुएशन में जो हाई कोर्ट जजमेंट को सर्टिफाई करके किसके थ्रू भेजेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू वो कोर्ट को भेजेगा जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हुई थी वो. देन इफ सच कोर्ट इज दैट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, द हाई कोर्ट्स जजमेंट और ऑर्डर शैल बी सेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. इफ such court against the order of that particular court, the appeal is preferred, is an executive magistrate, then that particular copy of judgment, certified copy of judgment shall be sent through a district magistrate to the executive magistrate. अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर हाईकोर्ट अपील सुन रहा है और अब अपील डिस्पोज करने के बाद, जजमेंट पास करने के बाद, वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ना भेजते हुए वो किसके थ्रू भेजी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू भेजी जाएगी. सो सेक्शन 388 डील्स विथ व्हेनेवर द हाई कोर्ट डिस्पोज द अपील, whenever the high court pass a judgment in that particular appeal, high court will certify that particular judgment and send it to the court against whose order the appeal is preferred. जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील प्रीफर हुई थी उसको वो कॉपी भेजेगा. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 389, suspension of sentence pending the appeal, release of appellant on bail. Section 389 deals with that particular title. So pending any appeal by a convicted person, the appellate court may order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail or on his own bond. For example, if the lower court passed the order of conviction against the accused person, and against the order of conviction if the accused prefer an appeal, एक लोअर कोर्ट ने अगर सजा सुनाया अक्यूज्ड को और उसके अगेंस्ट में अगर वो अपील करता है तो हमको पता है सजा सुनाने के बाद अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा. बट अगर वो अपील प्रीफर करता है अपेलेट कोर्ट के पास तो अपेलेट कोर्ट को पावर है कि जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं होती तब तक उसके जो सजा है, उसका जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड कर सकता है. कि मतलब जब तक अपील डिस्पोज नहीं होंगी उसकी सजा सस्पेंड, या उसको ऑर्डर पास कर सकता है अपेलेट कोर्ट कि रिलीज दैट अक्यूज्ड ऑन बेल. अगर वो कन्फाइनमेंट में है तो उसको बेल पे छोड़ो, ये ऑर्डर पास कर सकता है विथ और विदाउट श्योरिटी. मतलब अक्यूज्ड अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट में अगर अपील कर रहा है और अगर वो जेल में है तो अपेलेट कोर्ट उसका बेल का ऑर्डर पास कर सकता है, और अगर उसकी सजा है तो सजा को सस्पेंड भी कर सकता है. कब तक? जब तक अपील डिस्पोज ना हो जाए तब तक. Where the convicted person satisfied the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall. अगर फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट जिसने अक्यूज्ड को सजा सुनाया, अगर उस लोअर कोर्ट को वो सेटिस्फाई करता है कि ही विल प्रेजेंट एन अपील, कि मैं अपील प्रिफर करने वाला हूं, अगर उसको यकीन दिलाता है लोअर कोर्ट को, तो क्या होगा? वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years. तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन, वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल, अगर वो पर्सन बेल पे अक्यूज्ड पर्सन और उसके अगेंस्ट में सजा जो सुनाया लोअर कोर्ट ने वो है सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, जो 3 साल से ज्यादा नहीं है. एक दूसरा, वेयर द ऑफेंस कन्विक्टेड इज अ बेलेबल वन एंड ही इज ऑन बेल, order that the convicted person be released on bail unless there are a special reason for refusing bail for such period as will afford sufficient time to present the appeal, and the sentence of imprisonment shall so long as he
is so released on bail be deemed to be suspended। तो लोअर कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट जब अगर सजा का ऑर्डर पास करता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो सजा का ऑर्डर पास करने के बाद वो देखेगा कि अगर अक्यूज्ड अपील में जा रहा है, फॉर एग्जांपल अपील में जाना चाह रहा होगा, तो उस सिचुएशन में अगर उसके अगेंस्ट में जो सजा का ऑर्डर पास करे वाला है वो 3 साल तक का अगर है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, और या ऐसा ऑफेंस में उसको सजा दी गई है जो ऑफेंस बेलेबल है, उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो जो कोर्ट है उसको बेल पे छोड़ सकता है क्योंकि वो अपील प्रिफर करने वाला है ना। या अगर वो बेल रिजेक्ट कर रहा है तो उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा कि व्हाई द बेल इज रिजेक्टेड। और जब तक वो अपील प्रिफर नहीं कर लेता या जब तक अपील डिस्पोज नहीं होती, उसकी सजा सस्पेंड हो जाएगी, उसकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। When the appellant is ultimately sentenced to imprisonment for a term or to imprisonment for life, the term during which he is so released shall be excluded in computing the term for which he is so sentenced। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अक्यूज्ड के अगेंस्ट में लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास हुआ है या और कोई इंप्रिजनमेंट का 2 years 3 years वॉट एवर इट में भी ऑर्डर अगर पास होता है, अब जब तक वो अपील में गया, अपील में जाने तक जब तक उसको अगर बेल पे छोड़ा गया, जितना टाइम वो बाहर रहेगा, जितना टाइम उसकी कन्विक्शन सस्पेंड रहेगी, उतना टाइम उसके सजा का टर्म से एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 साल की सजा दी उसको और सजा देने के बाद लोअर कोर्ट ने 3 years की सजा सुनाया और सजा सुनाने के बाद उसको बेल पे छोड़ दिया क्योंकि वो अपील करने वाला था, उसकी सजा सस्पेंड हो गई, फॉर एग्जांपल वहां से सस्पेंड है। अगर फॉर एग्जांपल 1 साल तक अगर या 6 महीने तक अपील चलती रही तो ये 6 महीने तो वो सजा उसकी सस्पेंड है, तो ये 6 महीने के बाद वो पीरियड शुरू होगा 3 years का, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, 6 महीने उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सो दैट इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 389। नाउ सेक्शन 390, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। Arrest of accused in appeal from acquittal. So when an appeal is presented under section 378, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court. Suppose if the appeal is preferred under section 378, it means कि 378 में अगर अपील होती है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट वारंट इशू कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर को कि अक्यूज्ड को अरेस्ट कर कर मेरे पास लेकर आओ या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास उसको प्रेजेंट किया जाए। एंड द कोर्ट बिफोर विच ही इज ब्रॉट मे कमिट हिम टू प्रिजन पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील और एडमिट हिम टू बेल। तो क्या होगा कि जब कभी भी वो कोर्ट, जिस कोर्ट के सामने भी अक्यूज्ड को लाया जाएगा, एक तो वो कोर्ट क्या करेगा, उसको जब तक अपील पेंडिंग है, जब तक अपील डिस्पोज नहीं होती तब तक उसको जेल में रखेगा वो या उसको बेल पे छोड़ेगा, वट एवर इट मे बी। सो दैट इज अ प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 390 of CrPC. So I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button and share this video with your friends. Thank you very